Hello dear students, today we will discuss in this period about how changes occurs after fertilization, right? So we will discuss 4 points in this topic, that is first is endosperm development, right? So another one is embryo development, how embryo get develops, maturation of ovule into seed and maturation of ovary into fruit ball, right? It means we can say that after fertilization ovule converted into seed form and ovary converted into fruit ball, right? Now firstly we discuss about the endosperm. As we know about the embryonic structure, and I am showing a picture here. This is an embryo and it contains 3 cell above, 3 cell below and 2 cell in between, right? After fertilization what will be happen? These 2 cells, it means these 3 cells at the bottom, only 2 and will be present here and 3 and present in between center. 3 cells from the upper side and 2 cells from the lower side which is present at the micropyle, that should be degenerate after fertilization, after post fertilization, right? Now in this case 2n converted into embryo and 3n cell converted into embryo, right? There are 3 types of embryo endosperm form. First 3n converted into endosperm formation, right? Now endosperm multiply itself by the 3n and by meiotically, and it form a tissue, and these tissue provide nourishment to the developing embryo. And developing embryo कहाँ से form होगा? जो नीचे 2n वाली cell है, this will be divided again and again and it form a multiple cell structure, right? Now there are 3 types of endosperm present in nature. First is nuclear endosperm. It means what? कि nuclear cell divide many time and all cell moves towards the periphery. Again I am showing the picture like this is the nucleus divide multiple of cell. Now after multiplication each cell moves periphery, it means outside the membrane of this, and a space formed between these cell, that is called as central vacuole, right? The best example of nuclear endosperm, that is a coconut. कोकोनट में क्या होता है? आसपास पल्प होता है, वाइट कलर का सब्सटेंस होता है और बीच में जो होता है वो क्या होता है? लिक्विड वाटर फील्ड होता है. तो कोकोनट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट? नाउ अनदर एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज सेलुलर एंडोस्पर्म. अब इसमें क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है. साइटोकाइनेसिस इट मीन सेल डिवाइड कंटिन्यू. हमने न्यूक्लियस में क्या देखा था कि न्यूक्लियर सेल डिवाइड कंटिन्यू, और यहाँ पर है सारी की सारी सेल क्या होती है? डिवाइड होती है. और इस टाइप का जो डिवीजन होता है, जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, वो जनरली दतूरा जो शिव जी को फ्लावर चढ़ाया जाता है उसके अंदर कंसीडर होता है, राइट? नाउ नेक्स्ट इज सेलुलर सेलुलर एंडोस्पर्म, राइट? थर्ड वन इज हेलोबियल. हेलोबियल एंडोस्पर्म वैसा होता है जिसमें 2 सेल, फर्स्टली 2 सेल डिवाइड होती है. एक सेल सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है और दूसरा सेल जो है वो क्या करता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है. और हेलोबियल जो होता है वो जनरली मैक्सिमम जो होता है वो किस में होता है? जितने भी मोनोकोटिलिडॉन्स प्लांट्स होते हैं, मोनोकोटिलिडॉन सीड्स होते हैं, उसमें अवेलेबल है, राइट? इन पी groundnut, beans endosperm is completely consumed by the developing embryo. अच्छा, पी है, ग्राउंडनट है, मूंगफली है या बीन्स वगैरह जितने भी होते हैं, उसमें हमने देखा है कि बाहर फली होती है और फली के वहाँ पर, जैसे मैंने कोकोनट का बोला था कि वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, या हम मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो में सीड के बाहर पल्प होता है, राइट? इसका मतलब पल्प, दैट इज अ एंडोस्पर्म, राइट? बट इन तीनों में हमें सीड ही दिखते हैं, एंडोस्पर्म नहीं दिखता. इसका मतलब है कि तीनों के जो सीड होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, वो कंप्लीटली क्या करते हैं? आउटर एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट?
in some seed like groundnut, castor, एंडोस्पर्म persist mature seed। और हमने क्या बोला है कि ये जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये एंडोस्पर्म जो होता है वो लाइफ जब तक सीड है तब तक वो एंडोस्पर्म उनके साथ में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। दिस इज कॉल्ड एज persist mature seed, राइट। नाउ सेकेंड स्टेप, हाउ एम्ब्रियो डेवलप, राइट। एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा, तो हमें मालूम है कि 2 टाइप के सीड्स होते हैं, वन इज डाइकोटिलीडॉन, अनदर वन इज मोनोकोटिलीडॉन। अच्छा, मोनोकॉट और डाइकॉट की अगर हम बात करते हैं तो जनरली ऐसे सीड लीजिए जिनको इक्वली अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हैं तो उस पर्टिकुलर सीड को हम बोलते हैं दैट इज इक्वल 2 पार्ट कैन डिवाइडेड, दैट पर्टिकुलर सीड इज कॉल्ड एज डाइकॉट एंड another one is monocot, right? Now firstly we discuss that is in dicot, right? इन डाइकॉट सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डाइकॉट जो होता है, द जाइगोट डिवाइड्स ट्रांसवर्ली इन अपर सस्पेंसर सेल। अच्छा, ट्रांसफर मीन्स क्या होता है, दैट इज राइट। अब जाइगोट मैंने क्या बोला है, जो यहाँ पर ये देखिए एंटीपोडल सेल के वहाँ पर जो होता है दैट इज अ जाइगोट, राइट। दिस इज अ जाइगोटिक सेल। अच्छा नहीं सॉरी, दिस इज एंटीपेडल सेल जो क्या हो जाती है, वो डिजेनरेट हो जाती है और माइक्रोपाइल वाली एंड पे जो होती है वो क्या होता है, एक जाइगोटिक सेल होती है जो 2n होता है और बीच में क्या होता है 3n, जिससे क्या फॉर्म होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो 3n फॉर्म होती है, उसी से फर्दर एंडोस्पर्म क्या होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं। अब ये जो जाइगोट की जो सेल है ये क्या करती है, ट्रांसवर्ली डिवाइड होती है। ट्रांसवर्ली मतलब इसके बीच में डिवीजन होता है लाइक दिस, एक सेल से 2 सेल मतलब ऊपर से नीचे, और बाद में ये जो सेल होती है ये अप टू 7 to 10 सेल्स क्या करती है, डिवाइड करती है, राइट। और ये जब ऐसा होलो स्ट्रक्चर फॉर्म, ये मेन सेल है, उसके बाद में उसने ऐसा नेक लाइक पूरा स्ट्रक्चर बना है एंड दिस इज कॉल्ड एज सस्पेंसर। और इस सस्पेंसर सेल में टोटल कितनी होती है, 7 to 10 सेल्स होती है। और इसका जो लास्ट वाला अपर सेल होता है वो क्या होता है, ऐसा स्वेलअप स्ट्रक्चर फॉर्म। और नाउ नेक्स्ट, the embryonal cell divides 8 cell, the lower 4 cell develop into प्लूमल। अच्छा, कॉटलीडॉन में 2 मेन पार्ट होता है, एक होता है प्लूमल वाला पार्ट जिससे प्लांट का शूट पार्ट, एरियल पार्ट डेवलप होता है, और दूसरा होता है रेडिकल वाला पार्ट जिससे अंडरग्राउंड पार्ट फॉर्म होता है, दैट इज अ रूट पार्ट, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि 8 सेल में से 4 सेल जो होती है, लोअर 4 सेल जो होती है दैट शुड बी कन्वर्ट डेवलप इनटू प्लूमल, दैट शुड बी डिवाइड इनटू प्लूमल। और प्लूमल कौन सा वाला पार्ट होता है, जिससे शूट का पार्ट डेवलप होता है, एंड 2 कॉटलीडॉन। और यहाँ पर कितने होते हैं, 2 कॉटलीडॉन फॉर्म होते हैं। द अबव 4 सेल नियर द सस्पेंसर, 2 ऊपर वाली जो सेल होती है जो सस्पेंसर के नियर होती है, उससे फॉर्म होता है हाइपोकोटाइल, और दूसरा होता है दैट इज अ रेडिकल वाला पार्ट। और मैंने बोला था कि लोअर वाले से प्लूमल का फॉर्म होता है तो अपर वाले से किसका होगा, रेडिकल वाला पार्ट फॉर्म होता है, राइट। Now, the fully developed embryo of dicotyledon has embryonal axes that differentiate into plumule, 2 cotyledon and radicle। तो मैंने क्या बोला था कि जो ऐसे सीड जो इक्वली 2, जैसे ही हमने सीड कोट हटाया उसके अंदर 2 कोट जो होते हैं, 2 जो पार्ट होते हैं वो इक्वली पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं विदाउट ब्रेकिंग, दैट पर्टिकुलर सीड इज कॉल्ड एज डाइकॉट। और उस डाइकॉट में क्या क्या होता है, दैट इज अ प्लूमल, 2 cotyledon and 1 radical part is present। The lower end of radicle, मैंने क्या बोला था, रेडिकल से किसका फॉर्म होगा, दैट इज अ रूट टिप कवर्ड विथ अ रूट कैप। और रूट का जो पेनिट्रेशन वाला जो सॉइल को पेनिट्रेट करता है वो वाला पार्ट हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रूट कैप, राइट। इन द बिगनिंग एम्ब्रियो इज ग्लोबुलर, जो स्टार्टिंग में एम्ब्रियो होता है वो स्वेलअप स्ट्रक्चर होता है। व्हेन 2 कॉटलीडॉन डिफरेंशिएट इट फॉर्म हार्ट शेप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 कॉटलीडॉन को हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो इट का जो स्ट्रक्चर होता है दैट शुड बी लाइक अ हार्ट शेप, राइट। नाउ
सेम एज कि यहाँ पर देखिए कैसा डिवीजन शो हुआ है. फर्स्ट इज जाइगोट ट्रांसफरली डिवाइड इनटू 2 सेल, देन 2 सेल अगेन डिवाइड इनटू 4 सेल अगेन. तो देखिए एम्ब्रियो जो है वो ऊपर वाली जो सेल है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रही है और नीचे वाला जो है वो क्या हो रहा है, सस्पेंसर फॉर्म हो रहा है. ठीक है, और सस्पेंसर फॉर्म होने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर हो रही है जहाँ पर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, एंड आफ्टर द ग्लोबुलर मैंने क्या बोला था, ये जो ऊपर ग्लोबुलर वाला स्ट्रक्चर दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू कोटिलीडॉन. और कोटिलीडॉन का जो शेप होता है वो कैसा होता है, हार्ट शेप होता है. राइट, नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू कोटिलीडॉन, राइट, हार्ट स्टेज. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इन केस ऑफ मोनोकॉट, डाइकॉट में प्लूमल अलग होता है, रेडिकल अलग होता है और कोटिलीडॉन अलग. बट इन केस ऑफ मोनोकॉट द जाइगोट डिवाइड ट्रांसफरली सेम एज द डाइकॉट. अपर सस्पेंसर सेल प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइल रीजन. अपर सस्पेंसर जो होता है, सस्पेंसर का जो अपर पार्ट होता है वो कहाँ पर होता है, माइक्रोपाइल वाले एंड पे होता है. एंड द लोअर पार्ट जो होता है वो एम्ब्रियोनल सेल प्रेजेंट होती है. कौन से वाले पर्टिकुलर एज में, दैट इज इन चेलाइजा. राइट, एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड इनटू ग्लोबुलर एम्ब्रियो सेम है. इट फॉर्म्स अ मेसिव कोटिलीडॉन. हमने ऊपर क्या बोला था कि कोटिलीडॉन जो है वो हार्ट शेप में, देन दोनों कोटिलीडॉन कैसे हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं लाइक दिस. ठीक है, बट यहाँ पर कोटिलीडॉन जो होता है वो मिक्स होता है, मेसिव फॉर्म में होता है. इसका मतलब है कि फॉर्म मेसिव फॉर्म कोटिलीडॉन एंड प्लूमल. ठीक है, कोटिलीडॉन, प्लूमल और रेडिकल जो रहते हैं वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं. राइट, प्लूमल कवर्स बाय मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन. दैट पर्टिकुलर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल. क्लियर. नाउ द सिंगल कोटिलीडॉन इज कॉल्ड एज, अभी हम डायग्राम देखते हैं कि यहाँ पर कोटिलीडॉन जो होता है वो क्या होता है, डबल होता है. बट सिंगल कोटिलीडॉन जहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसके बीच में एक प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम. that is called as scutell. At lower end of embryonal axis radical develops. इसके नीचे वाले पार्ट से क्या होता है, वहाँ पर अलग होता है बट यहाँ पर इसके उसी पर्टिकुलर पार्ट से नीचे वाला पार्ट डेवलप होता है, रूट वाला, जो कि हमने रेडिकल बोला है. एंड इट कवर्ड बाय अ शीथ इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा. तो मोनोकॉट में प्लूमल और रेडिकल जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं डिफरेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय द ईच अदर. तो प्लूमल को कवर करती है, दैट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल मेम्ब्रेन, और जो रेडिकल को कवर करती है दैट इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा मेम्ब्रेन. दिस इज अ शीट. सेम एज देखिए स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है कि कॉर्न का सीड है, कॉर्न के सीड से देखिए कोलियोप्टाइल है, कोलियोप्टाइल से क्या कवर्ड है, दैट इज द प्लूमल वाला पार्ट. इससे क्या फॉर्म होगा, शूट वाला फॉर्म, और रेडिकल वाले फॉर्म से क्या हो रहा है, दैट इज रूट वाला फॉर्म. उसके बाद में सेम एज लीव फॉर्मेशन होती है, रूट फॉर्मेशन होती है इन केस ऑफ कॉर्न. और कॉर्न जो आता है वो मेज में आता है, और मेज जो होता है उसके सीड को आप 2 पार्ट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. राइट, नाउ अनदर वन वी विल डिस्कस, दैट इज अ सीड. सीड इज़ अ डॉर्मेंट कंडीशन आफ्टर ड्राइड. जो भी चीज़ें होती है, अगर मेज़ का सीड जैसे भुट्टे का दाना होता है, जब वो ड्राइड नहीं होता तो हम उसको सीड नहीं बोलते, बट जब वो ड्राई हो जाते हैं तो वी कंसिडर एज अ सीड. और सीड इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. इसका मतलब है कि किसी भी प्लांट में अगर सीड फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट इज रिलेटेड टू सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. राइट, नाउ इट इज़ फर्टाइल ओव्यूल. मैंने बताया था कि ओव्यूल कन्वर्ट आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इनटू सीड. सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट. आपने देखा होगा कि सीड के बाहर एक हार्ड कलर का ड्राइड सीड कोट अवेलेबल होता है और उसके अंदर कोटिलीडॉन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होती है, सेम एज दी स्ट्रक्चर. एंड कोटिलीडॉन कंटेन प्लूमल पार्ट, रेडिकल पार्ट एंड एक्सेट्रा. राइट, ना कोटिलीडॉन्स आर स्वेलअप ड्यू टू स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड. उसके अंदर जो कोटिलीडॉन वाला पार्ट होता है, जब हम सीड कोट को रिमूव करते हैं और उसके अंदर जो फ्लैशी पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज कोटिलीडॉन. और कोटिलीडॉन क्या करता है, रिजर्व फूड मटेरियल करता है, क्योंकि जब सीड डॉर्मेंट कंडीशन में, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो हार्ड होता है, बट जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो ग्रो होना, जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है. इसका मतलब है कि जब सीड डॉर्मेंट कंडीशन में ड्राइड केस में होता है तो उसको नरिशमेंट
कौन देता है, कॉटिलीडॉन के अंदर जो फूड रिजर्व होता है दैट शुड बी प्रोवाइड बाय द सीड, राइट। द सीड्स आर एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। अब एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड दो टाइप के होते हैं। तो इन एल्बुमिनस सीड इंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड बाय एम्ब्रियो। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड नट, पी, बीन्स में हम देखते हैं सीड के अंदर पूरा का पूरा क्या हो जाता है, इंडोस्पर्म एब्जॉर्ब हो जाता है। बट यहाँ पर हम कुछ सीड्स ऐसे देखते हैं कि जिनमें पूरा का पूरा जो सीड है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, दैट टाइप ऑफ सीड इज कॉल्ड एज एल्बुमिनस। और कुछ में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज non-albuminous seeds, right? In some seed like black pepper, द न्यूसीलस ऑल्सो प्रेजेंट। अब हमने देखा था, जब हमने स्ट्रक्चर देखा था कि भाई सबसे पहले जो एम्ब्रियो होता है उसमें इंटेग्यूमेंट लेयर होती है, उसके बाद में न्यूसीलस होता है जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसके बाद में ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ पर एंटीपोडल होता है वो चलाइजा होता है, नीचे जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करते हैं दैट इज माइक्रोपाइल, राइट। तो अब हम यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ सीड्स लाइक ब्लैक पेपर में न्यूसीलस भी प्रेजेंट होता है और द रेसिड्यूअल परसिस्ट न्यूसीसल इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। और ऐसे सीड जिसमें, क्योंकि हमने बोला था आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यूसीलस जो होता है वो क्या हो जाता है, कॉटिलीडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। बट कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूसीलस जो होता है एम्ब्रियो से सीड तक भी प्रेजेंट होता है, दैट टाइप ऑफ न्यूसीलस इज कॉल्ड एज, दैट टाइप ऑफ सीड इज कॉल्ड एज perisperm, right? In a non-albinous seed, endosperm is completely used up, absorbed by the embryo. Example we have already discussed, that is pea plant, groundnut, etc. etc. ये यहाँ पर डायग्राम दिया है, कैस्टर बीन का होता है और कैस्टर जो होता है वो किस में होता है, डाइकॉट में होता है। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि सीड कोड है, एंडोस्पर्म है, कॉटिलीडॉन ऑल्सो प्रेजेंट और उसके बाद में हाइपोकोटाइल और रेडिकल प्रेजेंट होता है। इन द इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल। अब हम देखते हैं कि भाई जितना भी ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था उसमें क्या क्या कन्वर्जन होता है आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जो इंटेग्यूमेंट होता है वो सीड के कौन से वाले पार्ट में कन्वर्ट होता है, दैट शुड बी कन्वर्ट इनटू सीड कोट। आउटर का जो हार्ड कवरिंग होता है वो ओव्यूल का जो इंटेग्यूमेंट होता है सीड में वो सीड कोट का फॉर्मेशन। माइक्रोपाइल सेम रहता है, जैसा कि हम सीड को, अब अगर आप कहीं से भी ध्यान से देखते हैं तो एक छोटा सा आपको आउटर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जहां से वाटर क्या होता है, एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, राइट। नाउ और वो जो माइक्रोपाइल होता है, क्योंकि सीड क्या होता है बाहर से डेड होता है पर अंदर से क्या होता है, लाइव होता है, क्योंकि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है वैसे ही वो उसको क्या करता है, जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब है कि वो जो माइक्रोपाइल जो एंड होता है, ओव्यूल में माइक्रोपाइल है जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करती है, बट सीड में जो छोटा सा एक स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से ऑक्सीजन और वाटर क्या होता है, जब जर्मिनेशन होता है तो एंटर करती है, जिसके कारण अंदर जर्मिनेशन से रूट और शूट का फॉर्मेशन होता है, राइट। सीड ड्राई बाय लूसिंग वाटर। और जब भी सीड को क्या किया जाता है, सीड को जब वो अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो अपने अंदर का वाटर क्या करता है, लॉस कर देता है, जिसके कारण वो ड्राइड कंडीशन में आ जाता है। द एम्ब्रियो एंटर द स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी। और एम्ब्रियो जो होता है अंदर से पूरा का पूरा वाटर क्या होता है, लूज हो जाता है, बट एम्ब्रियो अभी भी लाइव है और बाहर से हमें कैसा लगता है कि सीड जो है वो मरे हो। जब जनरली ऐसा होता नहीं, फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आती है वो क्या होते हैं, जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, राइट। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और फेवरेबल कंडीशन में सेम एज लाइफ फॉर्म करते हैं। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी, राइट। उसके बाद फ्रूट। द फ्रूट की, अगर हम सीड के बाहर जो होता है वो फ्रूट होता है, और फ्रूट वॉल हमने बोला था कि वही कौन सा वाला पर्टिकुलर पार्ट, तो ओवरी वाला जो पार्ट होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट होता है किस में, सीड में कन्वर्ट होता है, और ओवरी जो वॉल होती है वो काय में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम फ्रूट की वॉल्स देखते हैं तो जनरली वहाँ पर आउटर वॉल, जितनी भी वॉल होती है फ्रूट की जो वॉल होती है, चाहे वो बाहर का छिलका हो, पल्प हो, या सीड के ऊपर जो हार्ड कवरिंग के ऊपर एक पतला सा छिलका होता है, वो 3 मेम्ब्रेन होती है, एक होती है एपिकार्प, एक होती है मीजोकार्प और एक होती है एंडोकार्प। इन तीनों वॉल को मिला के हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प, राइट। और पेरिकार्प जो होती है वो जो होती है उसमें से हम मीजोकार्प जो होता है वो हम क्या करते हैं, एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट होता है, राइट। इन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, एप्पल और जनरली मैक्सिमम जितने भी फ्लावर, जितने भी
फ्रूट्स होते हैं उनकी जो फ्रूट वॉल होती है दैट इज डेवलप बाय द ओवरी वॉल, बट एप्पल और स्ट्रॉबेरी में ओवरी वॉल फ्रूट वॉल में कन्वर्ट नहीं होती, उनका जो थैलेमस होता है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट वॉल। दैट्स व्हाई एप्पल एंड स्ट्रॉबेरीज आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट, क्योंकि जो फ्रूट वॉल जिस फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होगा वो फ्रूट ट्रू फॉल्स होंगे, और जिनका फ्रूट ओवरी को छोड़ के बाकी को दूसरे पार्ट फ्लावर से होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट, राइट। द फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम द अनफर्टाइल ओवरी। और अच्छा एक चीज़ और है, हमने पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा था कि पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि कोई भी जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है और उसमें सिर्फ किसका पार्टिसिपेशन होता है, फीमेल गैमेट आर पार्टिसिपेशन फॉर द फर्दर एम्ब्रियो फॉर्मेशन और फर्दर इन्फेंट, राइट। तो यहाँ पर भी हम अगर बोलते कि ऐसा फ्रूट जिसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होते बट फ्रूट फॉर्म हो गया है, दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी फ्रूट, राइट। दीज आर सीडलेस फ्रूट। और आप देखेंगे सीडलेस फ्रूट जो होते हैं जनरली बनाना में कभी कभी दिखते हैं, अगर कभी कभी दिखते हैं तो वो पार्थेनोकार्पी नहीं है, बट जिनमें सीड नहीं होते हैं और सीड है इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड नहीं है इसका मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, राइट। कुछ स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे जो प्लांट्स में अवेलेबल होते हैं। एक होता है एपोमिक्सिस, ठीक है। एपोमिक्सिस इसमें क्या होता है कि इसमें सीड तो डेवलप होता है, जैसे हमने पार्थेनोकार्पी बोला था, बट पार्थेनोकार्पी में सीड विदाउट सीड फ्रूट फॉर्म होता है और वहाँ पर फीमेल गैमेट ओव्यूल ही क्या करता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट फ्रूट। बट यहाँ पर एपोमिक्सिस दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज फाउंड इन प्लांट्स। सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ovule is called as apomixis, right. The fruit developed from unfertile ovules are called as apomictic fruit. विदाउट होता है तो उस फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्टिक फ्रूट। द प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड segregated their character and not maintain hybrid character generation after generation, hence the farmer should buy hybrid seed every year, it makes expensive। हमने क्या देखा है कि जनरली क्या होता है कि कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, बट यहाँ पर हमने क्या बोला है कि जितना भी आजकल हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा प्रोसेस हो रहा है कि भाई जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो सारे सीड को मिक्स करके हम लाइब्रेरी में लेबोरेटरी में उसको क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं और हमें नया सीड जो फॉर्म होता है जो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वेल सूटेड होता है। बट ये हाइब्रिड जो कैरेक्टर होते हैं ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होते, इसलिए फार्मर को एवरी ईयर नए सीड खरीदना पड़ते हैं, और जिसके कारण ये जो टेक्निक होती है हाइब्रिडाइजेशन की, जो सीड की जो प्रोसेस होती है, क्योंकि एक बार खरीदने पे आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, बट हाइब्रिड केस में फार्मर को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि हर साल उन्हें सीड खरीदना पड़ता है। इट मेक द एपोमिक्सिस इज डन इन हाइब्रिड प्लांट्स टू अवॉइड द सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नेचुरली अगर हम ओव्यूल को विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्म में कर लें तो हमने क्या बोला है कि सेग्रीगेशन कैरेक्टर क्या होता है, अभी हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि सेग्रीगेशन होता है कि सारे कैरेक्टर साथ में रहते हैं बट वो फिर भी एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिविजुअली सेपरेट होते हैं, ठीक है। द फार्मर्स कैन यूज हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप एवरी ईयर, राइट। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या है, ये पेरेंट्स 1 है, ये पेरेंट्स 2 है, राइट। इनका जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें एक F1 जनरेशन मिलती है, हाइब्रिड प्लांट मिलता है। तो उससे एक हम क्या करते हैं, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हम ग्रो करवाते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, एपोमिक्सिस के थ्रू ग्रो करते हैं। तो एपोमिक्सिस के थ्रू हमें क्या मिलता है, सेकेंड जनरेशन तक सेम कैरेक्टर होते हैं, थर्ड जनरेशन भी मिलती है, फोर्थ जनरेशन। बट यहाँ पर हाइब्रिड वाला जो कंडीशन होता है वहाँ पर हमें सिर्फ एक ही जनरेशन में कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट जो स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है दैट इज अ पॉली एम्ब्रियोनी, और ये जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो, एक सीड में एक से ज़्यादा, अभी तक हम सिर्फ सिंगल एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, बट एक से ज़्यादा अगर एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं तो उस टाइप के फ्रूट। और अच्छा एम्ब्रियो को पहचानने की एक सबसे आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होती है, एक फ्रूट में आपको अगर एक सीड मिलता है तो दैट इज अ 1 एम्ब्रियो, राइट। अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो आपको मिलते हैं, एक से ज़्यादा सीड अगर आपको मिलते हैं तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी, राइट। तो मैंगो इज अ मोनो एम्ब्रियोनी, राइट। सिट्रस, नींबू, ऑरेंज, मौसम्बी या वाटरमेलन, दीज ऑल आर कंसिडर एज अ पॉली एम्ब्रियो।
Clear? So now at these your second chapter has been over now. From next video we will discuss about the third chapter, that is human reproduction, right? So have a nice day बच्चों, bye bye.